Now we are going to do a section here called valence bond theory applied to coordination compound structures. Valence bond theory indirectly indicates over here hybridization. We are not using pure valence bond theory. We will use hybridization concept here. I will revise the points of hybridization right now with you, and whichever is needed only for complex, that much I'm revising with you. Basics में जरा ध्यान देना, तो आपको cases properly समझ में आएंगे. So the basic postulate here or basic point is, we will take a central metal ion. We will check its oxidation state. For example, you can see it is Fe plus 2, Ni plus 2, Cr plus 3, something like this. Then write its electronic configuration. Listen to it very carefully. Yeah? Write its electronic configuration. Check which orbitals are empty available over there. As per the coordination number, those many orbitals should be available. So suppose coordination number is 4. Then there should be 4 empty orbitals available. If coordination number is 6, 6 orbital must be available. Let me give an example of it to understand what I am saying here. So let us assume we have an example of iron, Fe, atomic number 26. Basic configuration is Ar, 3d6, 4s2. Consider Fe plus 2 configuration. So किसी कोई कॉम्प्लेक्स में Fe plus 2 प्रेजेंट है. कॉन्फ़िगरेशन होगा ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 3d6. तो 3d6 मतलब हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, कितने ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल है वैसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6. Right now you are having 4 unpaired electrons present. How many orbitals are available with you? Right now, nothing. All orbitals contain at least one electron each. So as such, I don't have any orbitals with me present. Okay, fine. But are there any other orbitals present with you? There are. For example, अगर ये 3d ऑर्बिटल है, तो उसके बाद मेरे पास 4s और 4p के ऑर्बिटल्स अवेलेबल है. So, if possible, they can combine and give me sp3 hybridization. If required, I can do some jugglery with this configuration and make this d orbital also possibly empty. So, अपने स्टेप्स में हम लोग को क्या सीखना है हर एक कॉम्प्लेक्स में, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो मेटल आयन का. फिर मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद वी विल चेक which are the empty orbitals possible, and then think of the hybridization. Certain cases you need to know the hybridization, because हम लोग सिर्फ ये देख के hybridization predict करना बहुत difficult होता है. Wherever possible, I will show you some tricks and all, but as such you must learn it properly. Okay, these are the steps we are going to follow. Let me continue. इसका screenshot मत लेना, ये just rough work था. Step number 2. As I already said, appropriate orbitals are searched, hybridization is done, and then geometry is predicted. हम लोग सिर्फ ये 4 या 5 hybridization यूज करेंगे. sp3 सबसे मैक्सिमम केसेस, dsp2, sp3 d2, d2 sp3 और sp3d सिर्फ हम लोग एक ही केस करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का. अदरवाइज हम लोग को ये 3 हाइब्रिडाइजेशन के सबसे ज्यादा केसेस करने हैं. Now you must have seen here, those who are paying attention, sp3 d2 and d2 sp3. आपको लगेगा अरे क्या है, d2 पहले लिखा है बाद में लिखा है, how does it make a difference? Of course it makes a lot of difference. 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है. देखो पहला केस, जब sp3 d2 होता है इसका मतलब है s p और d तीनों ऑर्बिटल एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रहेंगे.
देखो यहाँ पर 4s 4p 4d, सबका नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, शेल नंबर है 4। लेकिन जब D2sp3 रहता है तो D विल बी फ्रॉम प्रीवियस शेल, S and P will be from the next shell. This is a big difference in sp3d2 and D2sp3, दोनों अलग केसेस है। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स का लिगैंड डिसाइड करेगा। वो भी सिखाऊंगा कैसे डिसाइड करना है, वो भी हम लोग करेंगे। यहां तक देख लो, कुछ डाउट है किसी को? So what is it? The last point that sp3d है। हाँ हाँ, या when we make the complexes, what happens is there are some metal, they will use their same shell orbitals, फोर्थ शेल का S, फोर्थ शेल का P, फोर्थ शेल का D, तो उसको हम लोग कहेंगे sp3d2। some metal ions use from previous shell D orbital 3 and next shell का 4s and 4p, तो उसको हम लोग D2 पहले लिखेंगे। Have you understood this correctly? Yes sir। So what doesn't that happen in the fifth one? इसमें नहीं, इसमें DsP3 का कोई हम लोग के सिलेबस होते हैं, अपने सिलेबस में केसेस नहीं है। आपको अभी शायद DsP2 का मीनिंग समझा होगा। Have you understood why we saying DsP2? मतलब D ऑर्बिटल 3D का रहेगा, 1 in D, 1 in और S S and और 2 P in P। बाद वाला रहेगा। ओके, तो D हम लोग पहले क्यों लिखते हैं, बाद में क्यों नहीं, या बाद में लिखेंगे तो मतलब क्या है, ये चीज समझ लो करेक्टली, राइट? Whenever we make these orbitals empty, in every empty मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर जो डोनर एटम का रहेगा लिगैंड का, that will go in that and it will create the bond। ये पॉइंट में कुछ समझने जैसा है नहीं, हम लोग अभी इसके केसेस ही देखेंगे। नाउ वी आर डिवाइडिंग इट हाइब्रिडाइजेशन वाइज। मैं हर एक हाइब्रिडाइजेशन के जितने पॉसिबल केसेस आपके सिलेबस में मैंने सब रखे हैं यहाँ पे। हियर आई हैव डन वन थिंग, जो जीटीबी के केसेस हैं वो मैंने जीटीबी करके मार्क किए हैं, जहां मार्किंग नहीं है मतलब वो आपके जेई नीट के लिए। तो व्हेन यू रीड दिस थिंग यू विल कम टू नो। चलो फर्स्ट वी टेक अप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सबसे इजी केस sp3 hybridization, and the first complex we study is tetrachloronickelate roman 2। तो जीटीबी के जो केसेस हैं वो एक तो टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब किए हैं, दे कम फॉर 2 or 3 मार्क्स इन एग्जाम। सम ऑफ देम आर बिहाइंड द टेक्स्ट एज होमवर्क गिवन, वो भी मैंने सॉल्व करके दिया आपको। तो योर जीटीबी ऑल द केसेस आर सॉल्व्ड and this section is not coming in the cancelled part, so please do this very well। HSC में है, और जेई और नीट वालों को तो ये अभी तक का कोऑर्डिनेशन एक बाजू में और ये टॉपिक पूरा एक सेक्शन, हर साल क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज डू इट वेरी वेल। चलो वी बिगिन विद द प्रोसेस, हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे। फर्स्ट आपको याद होगा हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। Cl इज -1, 4Cl -4, तो निकल कॉन्फिगर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। पुराना चीजें याद होगा आपको। अभी हम लोग लिखेंगे निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन। निकल का कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2, तो +2 के लिए इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ने निकाल दिया। सो लेट अस सी, अभी इसके पास s ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो ये 4s और 4p के 3 ऑर्बिटल यूज करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। व्हाट स्टेप बाय स्टेप, निकल एटम 3d8 4s2, निकल रोमन 2 मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन 3d8। यू कैन सी दीज 4 ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी, तो ये d ऑर्बिटल को वो वैसे ही छोड़ देगा, उसको हाथ ही नहीं लगाएगा, और ये 4 ऑर्बिटल को कंबाइन करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। So these are the 4 orbitals which are created here, sp3। Now in this 4 empty orbital, each chloride will submit 1 pair of electron। तो ये फर्स्ट लिगैंड के इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ।
we have created NiCl4 complex. Geometry क्या होगी इसकी आपको मालूम है? Tetrahedral geometry, it will look like this. You can also see in the entire complex, I can see 2 unpaired electrons here. बाकी सब paired है देखो. तो अगर 2 unpaired electron है मतलब ये पैरामैग्नेटिक है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ 2.83 होगा. ये कैसे करना है मैंने आपको डी ब्लॉक के टाइम बताया था. 1 के लिए 1.73 वाला वही ट्रिक मैंने यूज किया फिर से. आई एम नॉट एक्सप्लेन इट अगेन. ये आपका पूरा एक आंसर है. ऐसे हम लोग आंसर्स करेंगे हर एक के. Sir, for exam, we have to remember, we have to prove it like this, or we have to remember. Exactly. This is the, you can call it a proof also. I don't mind. This is the answer you need to know for HSC. JEE नीट CET के लिए मैंने सब हाइब्रिडाइजेशन के बाद समरी दिया है, तो वो समरी आपको ध्यान में रखना है. जो HSC में आंसर्स है वो मैंने इस तरह से डिटेल में किए हैं. जो HSC में नहीं है वो मैंने शॉर्ट में लिखा है. I'll show you both the ways. But I've worked out all the answers. Sir, they can give any random compound? नहीं, आप सिलेबस में है उतने ही है करना. रैंडम कोई भी कंपाउंड दिया तो आपको नहीं आएगा करने के लिए. आपको क्या, मुझे भी नहीं आएगा. इनफैक्ट लेट मी टेल यू, ये फाइंड आउट कैसे होता है. मतलब हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं कौन सा हाइब्रिडाइजेशन. सबसे पहले दे चेक व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर. सपोज 4. तो अगर 4 है तो एक तो वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है. सो दे चेक द ज्योमेट्री यूजिंग एक्सरे फोटोग्राफी. देन दे चेक द मैग्नेटिज्म and by trial and error method they work out this as you can see. तो sp3 करके देखेंगे. अगर वो मैच हो गया, जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैच हो गया, तो okay, the theory is correct. This is actually done by trial and error method. So unless you have experimental data with you, you cannot predict any modern, any new complex given to you. कोई नहीं कर सकता, साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते. तो आपके देखो, आपको कहाँ देखना है. एक तो GTB, दूसरा NCERT, फिर NCERT के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है वो बिहाइंड द टेक्स्ट वाले, और आपके JEE नीट बुक्स. ये सब जमा करके मैंने इस PDF में सब कॉम्प्लेक्स को रखा है. एंड ऑफ कोर्स पास्ट एग्जाम JEE एंड नीट पेपर्स. तो आई कैन वाउच दैट इसके बाहर आपको एक भी नहीं आएगा. बहुत सारे हैं. इनफैक्ट आप देखोगे टोटल लिस्ट इज वेरी ह्यूज. एंड में आप गाली दोगे मेरे को, इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं. ये खाली पहला लिखा है मैंने अभी. So can you explain a table again? I have written nickel का basic configuration 3d8 4s2. Then Ni plus 2. So I deleted 2 electrons from here. This is as it is. Now since I have S and 3p orbitals ready available, they can mix and form sp3 hybridization. Then in the empty orbitals, now just fill up the electrons of ligands. We'll be repeating this procedure now in every complex. This process is same. Let us take up another complex of sp3, NiCO4. Watch first of all, ये neutral complex है. No charge, no nothing outside. Carbon monoxide is neutral molecule. तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0. तो हम लोग यहाँ पे निकल एटम का कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करेंगे. अभी आप 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए तो s ऑर्बिटल में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो this cannot undergo sp3 hybridization as it is. So what happens is something like this. Watch here very carefully. 4s2 original state. Can you see what has happened over here? Can anyone describe? 2 electrons have gone to 3D. 4s के 2 electrons have come back to this 3D orbital here. Got it everyone? Yes, sir. You can call it a demotion, not promotion, क्योंकि 4s से 3D में गया है, पीछे गया है ऑर्बिटल. So that it can make 4s orbital now available for hybridization. Now this is ready. Undergo hybridization.
take up electrons from carbon monoxide, make your molecule tetrahedral NiCO4. No electron is unpaired in throughout molecule, diamagnetic. You can see I have no marking over here of GTD. तो ये HSC वालों के लिए ये कॉम्प्लेक्स नहीं है. लास्ट ईयर था, ओल्ड सिलेबस में अभी नहीं है. So the 3D orbital has reached its capacity, right? हाँ, क्या क्या क्या? 3D orbital. हाँ. It has reached its capacity. Yes, of course. Yes, of course. Okay. You obviously will have a doubt in mind, at least one student in entire batch, कि ऐसे क्यों हो रहा है? 4s पीछे क्यों जा रहा है? And can this happen every time? Obviously, no. There is something over here known as strength of ligands. Read the first line. A different behavior was observed in two complexes. In chloride, electrons remained as it is, while in carbon monoxide, they were forced back in earlier orbitals. This is because of ligand's strength. So ligands are classified in this way. This is an entire series of all the ligands you have in your syllabus. And this series is known as spectrochemical series. इसमें जो स्टार्टिंग के लिगेंड्स है उनको कहते हैं वीक फील्ड, और जो एंड वाले लिगेंड्स है उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड. सो आयोडाइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड, द स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग. सो अभी आपको शायद लॉजिक क्लियर होगा कि पहले वाले केस में मेरे पास क्लोराइड था जो कार्बन मोनोऑक्साइड से वीक है. तो वीक लिगेंड्स क्या करते हैं? जैसे ऑर्बिटल अवेलेबल है उसमें वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे. स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या करेंगे? दे विल मेक अ प्लेस फॉर देम. अगर ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन को जहां मिले पुश कर देंगे, एंड दे विल मेक देयर ओन प्लेस फॉर हाइब्रिडाइजेशन. Weak field ligand does not force electron to pair up, while strong field ligand can pair the electrons. ये मैंने आज के डेट में इसको इंट्रोड्यूस किया है. ये हम लोग चैप्टर के एंड तक इस सीक्वेंस को यूज करने वाले हैं. एज अर्ली एज पॉसिबल ये पूरा सीक्वेंस आपको बाय हार्ट करना है. पूरा सीक्वेंस: आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, थायोसाइनेट, क्लोराइड, अजाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्सी, ऑक्सालेट, एक्वा, आइसोथायोसाइनेट, ग्लाइसिन, पिरिडिन, अमाइन, इथिलीन डायमाइन, नाइट्रोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. ओरिजिनल लिस्ट काफी बड़ा है, इसमें से ये आपको 12th स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ इतना दिया है. Whatever ligands we will need, they have been mentioned here. So from which point will they start moving the electrons? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमेशा कंपैरिजन होता है. जैसे हम लोग दो कंपेयर करेंगे, क्लोराइड फ्लोराइड, तो उस टाइम पे क्लोराइड वीक होगा, फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे रहता है. वीक एंड स्ट्रॉन्ग आर रिलेटिव टर्म्स. यूजुअली, मतलब बुक्स में मेंशन नहीं है लेकिन हम लोग बीएससी में ऐसे सीखते थे, वाटर इज टेकन एज अ मिड पॉइंट, और वाटर के जितने आगे वाले हैं वो सब मोस्टली बहुत स्ट्रॉन्ग. वाटर इज मॉडरेट और वाटर के पहले वाले सब वीक. अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, जितने इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है वो सब देखो वीक फील्ड है. आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन. और कार्बन वाले जितने ग्रुप्स है वो सब स्ट्रॉन्ग है. देखो यहाँ पे कार्बन है, ग्लाइसिन मतलब ऑर्गेनिक, पिरिडिन ऑर्गेनिक, नाइट्रोजन, NO2 साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप्स आर वीक फील्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कार्बन ग्रुप्स, नाइट्रोजन ग्रुप्स, दे आर strong field. Just a rough way, don't remember it 100% like that. Continue with tetrahedral. अभी इसके बाद हम लोग ने पूरे डिटेल में आंसर नहीं लिखे हैं, मैंने शॉर्ट में लिखे हैं जितना आपको एग्जाम के लिए क्विकली रिक्वायर्ड है. CuCN4-. कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है 3D10-4s1. कैलकुलेट एंड टेल मी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है? 1. +1. तो अगर ये +1 है तो इसमें से 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. कॉन्फ़िगरेशन इज 3D10. अभी 1 मिनट के लिए सोचो, आपके पास है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो अगर आपका 4s ऑर्बिटल एम्प्टी है
4p ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, तो इट विल अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ज्योमेट्री आपको पता है, टेट्राहेड्रल. हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डू यू सी हियर? 0. 3d10 0. So this is going to be diamagnetic. बस आपको अभी से हर एक आंसर जो जीटीबी में नहीं है इतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं. कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिज्म, और कुछ नहीं चाहिए. इन सीईटी, जेई, नीट, they ask every answer only this much way. We will try to work out on our own. Zinc configuration. Ammonia is 0. So zinc की oxidation state +2. So Zn +2 will be 3d10. Can you predict me the next points now? sp3 hybridization sp3 with using 4s and 4s 4p. and 4p. N equal to N is equal to 0, diamagnetic. समझ में आया कितना इजी है? आपको लॉजिक समझाए तो बहुत इजी आंसर है. ओके, नेक्स्ट वन. NiNH3 2+. Nickel configuration. Nickel is in +2 state, you can see. It's the sp same thing. sp3 तो है. Like sp3. 3d8 में Paramagnetic. कितना होगा? N2 and to paramagnetic. N is 2, paramagnetic. 4 over Magnetic 2.83. moment 2.83. Have you all understood? ये आप ये एक एक एलिमेंट जो सॉरी कॉम्प्लेक्स जो दिया है इतना बाय हार्ट करो, और आपको कुछ एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है. मोर एग्जांपल्स. बाय द वे, एनी अदर डाउट इन दिस बिफोर आई गो अहेड? आपको बेसिक ट्रिक समझाए तो आपको सभी आंसर इजी लगेंगे. ऑल हाइब्रिडाइजेशंस आर डन इन दिस वे ओनली. This sp3 how do we write? हाँ, sp3 मतलब समझा नहीं क्या क्या? Sir, by seeing the configuration. You cannot. That's what I'm saying. तो आपको sp3 के अंदर कौन से केसेस है ये बाय हार्ट करना पड़ेगा. Okay, sir. That much like there is no shortcut for that. जैसे हम लोग ना अपने नॉर्मल केमिकल बॉन्डिंग में कैसे करते थे, ऑर्बिटल काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट करते थे शॉर्टकट, वैसे यहाँ नहीं है. दैट डजंट वर्क हियर. So that shortcut I can't help. I searched a lot on internet also. Is there any shortcut to do it? कुछ नहीं है available. You have to remember it only. चलो, FeCl4 minus charge, Fe configuration. Fe का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, so 3d5. So 4s and 4p यूज करके हाइब्रिडाइजेशन. 3d5 मतलब unpaired electrons are going to be 5, highly paramagnetic 5.92. I hope you must have understood the trick now. MnCl4 2-, manganese configuration. Mn का चार्ज यहाँ पे शायद आएगा +2. NS5. CuCl4 2-. So now here you can see copper is going to be +2. So this will be 3d9. So hybridization में कोई problem नहीं है. 4s 4p all are empty only. 3d9 means number of unpaired electron will be only 1.73. Everyone is following this, quite easy. Yes. More. COCl4-, cobalt. This is in GTB given in the box as try out yourself, not explained in detail. So 3d7 4s2. Cobalt is in +3 state here. I'm sorry, +2 state here. This is -2. In the table I've given it correctly later. So sp3 3d7 है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा unpaired electron 3. ZnCl4 -2. Zn is going to be +2 here. 3d10. Vanadium tetrachloride वाला. So tetrachlorovanadate 2-. ये भी होमवर्क में बिहाइंड द चैप्टर दिया हुआ क्वेश्चन है. अभी वैनेडियम +3 है, तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन डिलीट होगा. सो 3d2 and 2 electrons are unpaired. There is a mistake here. It should be
2, n equal to 2 paramagnetic. I'll make a correction right away. This is going to be 2. So how is V plus 3? एक सेकंड ना, ये +2 है. Oh, एक सेकंड. I think that was all right. ये +2 होना चाहिए और ये, am I right now? Yes, sir. अभी देख लो, ये करेक्ट है. यहाँ पे 3D 3 है. This is +2. So, अभी हम लोग ने जितने sp3 के किए उसका मैंने एक समरी बनाई. ये आपको प्रॉपरली आना चाहिए इन एग्जाम टू रिमेंबर. दिस इज व्हाट यू शुड कैरी फॉरवर्ड फॉर योर एग्जाम. एग्जाम से एक दिन पहले आपको अगर रिवाइज करना है तो सिर्फ ये टेबल्स ध्यान में रखना. ये अभी तक हम लोग ने किया sp3 वाला पार्ट. ये सबसे लार्जेस्ट था. So हाँ बोलो. can you go behind? The first complex is wrong, sir. I will correct all the things before sending this to you. Don't worry. मैं एक बार टेक्स्ट बुक में फिर से चेक कर लेता हूँ क्या केस है. तो VCl4 वाला भी है, वहां पे -2 वाला भी था, एक COCl वाला. I'll do the rectification and send. Next is DSP2, that is called square planar complexes. तो अभी इसके केसेस ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा sp3 वाला ही था. स्क्वायर प्लेनर में सबसे इजीएस्ट वन इज NiCN4 tetracyanonickelate. So oxidation state is +2. So configuration will be 3D8 4S0. अभी ये पिक्चर देख लो पहले. ये आपका 4S2 3D8 है. So when it becomes Ni+2, this is already made empty. But it is found that this undergoes DsP2 hybridization. So इसके लिए ये एक इलेक्ट्रॉन पीछे के ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा. देखो यहाँ पे, making a room for this d orbital empty so that it becomes DsP2 hybridization. Now you can see here we have used cyanide ligand, which is a strong field ligand, carbon containing ligand. साइनाइड है, इसके लिए ऐसा वो कर सका. अगर हम लोग क्लोराइड यूज करते थे तो इट विल नॉट बी एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड इट विल एंड अप इन गिविंग यू sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इसलिए अगर आप 2 मिनट के लिए पीछे का टेबल देखोगे तो शायद ये कॉम्प्लेक्स हम लोग ने शायद किया है. देखो ये वाला NiCl4. इसमें देखो जब क्लोरीन था तो वो DsP2 नहीं दिखा सका. उसने क्या किया, sp3 वाला ऑर्बिटल यूज करके अपना काम कर लिया. सो क्लोराइड वीक फील्ड लिगैंड गोस फॉर sp3. साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वो इलेक्ट्रॉन को पीछे पुश करके अपना जगह बना लेगा एंड इट विल मेक द करस्पॉन्डिंग थिंग. डायमैग्नेटिक है क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. तो जब d ऑर्बिटल अपने पास अवेलेबल नहीं होता है so they need to push the electron back. That's why such complexes will mostly contain strong field ligands only. Any doubt in this whole thing? Another one. अभी मोस्टली आपके बुक में कभी कभी एक ही कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जेई और नीट में वो लोग थोड़ा वैरायटी पूछते हैं. जैसे इसमें कॉपर टेट्रामाइन हो, टेट्रासाइन हो, टेट्राएक्वो, एवरीथिंग बिहेव्स इन सेम मैनर ओनली. तो एक्चुअली स्पीकिंग आपको तीन कॉम्प्लेक्सेस याद नहीं रखना है, आपको एक ही कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ लिगैंड इज चेंजिंग. सो नाउ यू कैन सी हियर फर्दर कॉपर +2 है. सो कॉन्फ़िगरेशन 3D10 होगा +2 का. हाँ, देयर इज अ मिस्टेक आउट हियर. 3D10 है. तो ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे देखना, ये 3D9 होना चाहिए. आई विल डू अ करेक्शन. यहाँ पे देखो, ये 4s1 है और ये 3D10 था. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कॉपर +2 होगा तो व्हाट विल हैपन,
4s electron is gone, s is made empty. 1 electron from here it is gone, 1 electron will remain. But since it wants d orbital to make dsp2, वो एक इलेक्ट्रॉन यहां से 4p में ट्रांसफर करता है एकदम आउटसाइड, एंड दिस बिकम्स dsp2 hybridization. Is this understood? So उसको पीछे के तरफ पुश करने के लिए कोई ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो वो pz में पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेगा, so that dsp2 is produced. Geometry is square planar. 1 electron outside is unpaired here. Magnetic moment 1.73. ये लास्ट ईयर के जीटीबी में आंसर था, अभी ये साल निकाल दिया है, तो सिर्फ ये अभी जेई नीट के सिलेबस में है. नेक्स्ट वी हैव प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स. ये जीटीबी में वो कॉपर का निकल के उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स रखा है आपके कोर्स में. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम +2. प्लैटिनम हम लोग यूजुअली कहाँ यूज नहीं करते, तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखो. और प्लैटिनम +2 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 5d8. सो अभी ये देखो, इसको 5d8 में ओरिजिनली कैसे होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन वो पीछे शिफ्ट कर देगा, मेकिंग अ रूम फॉर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन. ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये है विथ 4 अमोनिया ग्रुप्स. इसकी जगह पे आप लोग 4 साइनाइड ग्रुप इमेजिन कर सकते हो, वही स्टोरी. 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, a famous compound for anti-cancer treatment, cisplatin, cisplatin. इस फॉर्म में, उसका भी यही स्टोरी है. सो ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस का एक ही स्टोरी है. आपके जीटीबी में ये कॉम्प्लेक्स मेंशन्ड है, बाकी 2 कॉम्प्लेक्सेस मैंने जेई के बुक्स में से लिए, नीट के बुक्स में से. That's all under your square planar. You have only these many. मैंने यहाँ पे लिखते वक्त वो जो कॉपर के ग्रुप किए थे, प्लैटिनम के ग्रुप किए थे, उसको मैंने सेपरेट किया है. अदरवाइज आपको एक्चुअली स्पीकिंग सिर्फ 3 ही स्लाइड्स थे, निकेल वाला, कॉपर वाला और प्लैटिनम वाला. जेई नीट सीईटी में वो लोग मैक्सिमम क्या क्या पूछते हैं, कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्प्लेक्स देके उसके मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री, या कॉम्प्लेक्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो आप ये स्लाइड्स देखोगे तो इसमें सब कुछ एक साथ आ जाता है आपको. ऊपर हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ ज्योमेट्री है, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपको मैग्नेटिज्म खुद को मालूम है कैसे निकालना है. I hope everyone is okay if I continue and finish this topic right away. और आपको कल का पढ़ाई करना है तो I will continue this on Monday. You be frank with me.